सावधान। एक साथ विश्राम होंगे, विश्राम। सावधान होंगे, सावधान। हिलो मत। परेड आगे से मेहमान को लेने के लिए जाएंगे। तेज चाल चलेंगे, तेज चाल चल। आइए सर। Assalamualaikum, ladies and gentlemen. Good morning. I'm Zaki Fatima. I'm supervisor at Rumi Nursery School. It is so cool to be here with all of you today. We are gathered here today to celebrate the 75th Republic Day of our great nation India. It's a day that fills our heart with the pride, patriotism and sense of unity. Today we came together to honor the values of justice, fertility, liberty and equality that our constitution upholds. Now I would like to invite Hussain from senior KG and Muhammad from junior KG to lead a dua on stage before the program starts. Your presence will add a meaningful touch to the event. Thank you. Let's extend a warm welcome to Anis sir. Your presence adds an immense value of our gathering. Please grace us with your presence on stage. Let's all clap together really loud. मैं हिंदुस्तान हूँ, मुझे सवारा कुदरत ने तो अजीम बनाया मेरे चाहने वालों ने। जब भी बाहरी तूफानों ने मेरी बुनियाद हिलानी चाहिए, हिमालय ने उनके रुख को मोड़ा तो सरहदों पर खड़े मेरे जवानों ने कई तूफानों को कुचला। कहत साली ने जब मेरे सीने को चीरा तो गंगा, यमुना, नर्मदा और कावेरी ने मुझे सराबोर किया। तो वहीं मेरे किसानों ने मुझे सिंचा। और जब इस तकनीकी दौर में मैं बिछड़ने लगा तो मेरे जवानों ने, मेरे चाहने वालों ने मेरे तिरंगे को चांद के सीने में गाड़ कर ये ऐलान कर दिया, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा, ये गुलसितां हमारा। Respected President Sir, जनाब सोएब रंगरेज साहब, वाइस प्रेसिडेंट सर जनाब तबरेज भाई वाड़ीवाला साहब, सेक्रेटरी सर जनाब मजहर भाई जरीवाला साहब, और टुडेज चीफ गेस्ट जनाब GM मलिक साहब, और गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब सोहेल भाई सवानी साहब, and other special guests, committee members, dear parents, teachers, non-teaching staff and students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today is a very auspicious day. We all are gathered here to celebrate the proud day for India, the Republic Day of India. This day is celebrated on January every year to give the honor to the longest constitution of the largest democracy in the world. And this occasion marks the patriotic spirit within us and encourages us to be loyal and respectful towards our nation. So let's enjoy, let's celebrate today's day, the Republic Day of India. जैसे कि हम सब जानते हैं कि मेहमान चाहे घर में हो या किसी महफिल में
वो हमेशा अल्लाह ताला की हमारे लिए रहमत है, हमारी जीनत है। और आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रोशनी एजुकेशन ट्रस्ट और रूमी नर्सरी स्कूल बहुत खुश नसीब है कि आज इसके आंगन में, इसके दाइस पर इस सूरत शहर के काफ़ी नामी गिरामी खिदमत गुजार जो अपने किरदार से इस देश को, हमारे शहर को, हमारी कौम को महका रहे हैं। तो मैं उन सभी गेस्ट ऑफ ऑनर्स का इस्तकबाल करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारी दावत को तस्लीम किया और हमारी इस महफिल में चार चांद लगाया। सो नाउ आई रिक्वेस्ट आवर प्रेसिडेंट सर जनाब सोएब रंगरेज साहब to give the light on the brief introduction about our today's chief guest, Janab G.M. Malik Sahab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. When we talk about the knowledge and scholar, sky is the limit, but somewhere to someone personalities when we keep our eyes on, we definitely found the ocean of intelligence, knowledge and experience flowing in them. And the chief guest of today's program is one of the dignitaries I quote above. Yes, with the grace of Allah, we are able to have here the honorable and most respectful Professor Dr. G.M. Malik sir. No words of flower are indeed to felicitate His Highness, yet I would like to introduce him thought His excellence in the world platform. G.M. Malik sir आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं। इन्होंने अपना एजुकेशन पीएचडी किया है केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर VNSGU से, एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इनका मेन सब्जेक्ट, और पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म भी इन्होंने किया है VNSGU से। इन्होंने एज अ प्रोफेसर केमिस्ट्री के अंदर अपना करियर की स्टार्टिंग की थी 1982 से 2020 नवंबर तक। ये HOD रह चुके हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। विजिटिंग प्रोफेसर इन्होंने काफी खिदमत अंजाम दी है डिफरेंट कॉलेजेस में, जिसमें से खोलवर्ड साइंस कॉलेज है, सार्वजनिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जिसे हम स्केट के नाम से जानते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन VNSGU में ये विजिटिंग फैकल्टी काम कर चुके हैं। इग्नू में इन्होंने अपनी खिदमत अंजाम दी है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में भी ये विजिटिंग फैकल्टी में अपने लेक्चर्स दे चुके हैं, और काफी इंटरनेशनल जर्नल में ये अपने रिव्यूअर का अपना काम अंजाम दे चुके हैं। और ये ऑनरेबल मेंबर ऑफ लोकल एजुकेशन एंड सोशल इंस्टीट्यूट है। आप सूरत की सरजमीन पे जहां पे भी एजुकेशन पे कहीं काम होता सुनोगे तो उसमें एक नाम आपको कॉमन मिलेगा, वो है डॉक्टर G.M. मलिक सर का, जो आज हमारे चीफ ऑफ ऑनर गेस्ट है। इनके अंडर में 16 अवॉर्डेड PhD स्टूडेंट्स हो चुके हैं, 1 को गाइड फॉर PhD रह चुके हैं, 4 MSc डिसर्टेशन इन्होंने पब्लिश किए, MS डिसर्टेशन ऑफ सुपरवाइज किया है, 1 अवॉर्डेड MA NF में, 3 अवॉर्डेड RGNF है, और 3 अवॉर्डेड यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप इनको मिल चुकी है। ये है हमारे G.M. मलिक साहब। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और हमारे इस फंक्शन को कामयाब बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। Thank you so much sir for your warm welcome to our guest of honor. अल्हम्दुलिल्लाह सर की जो सिंप्लिसिटी है, इतने आला मायार के काम अंजाम देने के बावजूद भी ग्राउंड टू अर्थ
जो वाकई काबिल-ए-दाद है, और ये हमारी कौम की खुशकिस्मती है कि आप जैसी शख्सियत हमारे साथ आज हमारे बीच है। जज़ाकल्लाह खैर सर, बहुत बहुत शुक्रिया। नाउ टू फेलिसिटेट आवर चीफ गेस्ट जनाब GM मलिक साहब, I would like to invite our Vice President Sir जनाब तबरेज़ भाई वाड़ीवाला साहब। जोरदार तालियों के साथ सर का इस्तकबाल किया जाए। थैंक यू सो मच सर। Now, our today's second guest of honor, जनाब सोहेल सवानी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब इस सूरत शहर के दुराजी मेमन जमात के प्रेसिडेंट सर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड टर्म सर की शुरुआत हुई है, और सर के कामों को जिस तरह से सूरत के शहर के लोगों ने मेमन जमात के साथ साथ दीगर अवाम में भी हमारी कम्युनिटी ने जिस तरह से सराहा है, वो वाकई में बहुत ही काबिल-ए-दाद तो है ही, और सर की जो दूरअंदेशी है उससे हम सब बखूबी वाकिफ हैं कि जिस तरह से सर ने मॉडर्न एजुकेशन को पकड़ा है हमारी कौम में बेदारी लाने के लिए, जो आज के दौर की ज़रूरत है। जिस तरह से हमारे बच्चे आफ्टर 12th कॉलेजेस में एडमिशन की मुशक्कत, लैकिंग ऑफ नॉलेज की वजह से जो रह जाते हैं, सर उनकी प्रॉपर काउंसलिंग के जरिए उनके एडमिशन प्रोसेस में एक जो टीम बनाकर सर अल्हम्दुलिल्लाह काम अंजाम दे रहे हैं, वो वाकई में बहुत सराहने की बात है। और खूब दुआएं हम देते हैं आपको कि सर आपकी खिदमत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, और इसी तरह से आपके हौसलों को बुलंद रखे, और हम सब आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस काम में शामिल हो सके। सो जनाब के फेलिसिटेशन के लिए मैं इनवाइट करता हूँ जनाब हमारे सेक्रेटरी सर जनाब मजहर भाई जरीवाला साहब से कि वो आए और सर की गुलपोशी करें। थैंक यू सो मच सर। अब हम उस लम्हे के बेहद करीब आ पहुंचे हैं जिसमें हम आज के हमारे चीफ गेस्ट जनाब GM मलिक साहब को सुनने जा रहे हैं। तो बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं सर को दावत सुखन देता हूं कि वो माइक के पास आए और अपने ख्यालात का इजहार हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारी कम्युनिटी मेंबर्स के साथ खुलकर रखें। सर, थैंक यू सो मच। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। आज 26 जनवरी 2024 जमहूरियत के पहलू से एक मुबारक दिन और हमारे पहलू से भी जुमा का मुबारक दिन।
आप सबको यौम जमहूरियत की 75वीं जो सालगिरह है उसकी सारी मुबारकबाद। हमारा जो भारत है, इंडिया है, तो हमने आज़ादी के टाइम पे हमारे बुजुर्गों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ये तय किया था कि हम हिंदुस्तान को डेमोक्रेटिक कंट्री, रिपब्लिक कंट्री बनाएंगे। और अंग्रेज़ों ने चैलेंज दिया था कि आप ऐसे अनपढ़ गवार लोग हैं, इतने सालों से गुलामी कर रहे हैं, तो आप कैसे हिंदुस्तान को चलाएंगे। और ये चैलेंज को हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने एक्सेप्ट किया और अंग्रेज़ों ने जो हमको चैलेंज दिया था, और वो चैलेंज हमको जो दिया था उसको ब्रिटिश हुकूमत ने एक कैबिनेट मिशन के फॉर्म में दिया था। तो इस कैबिनेट मिशन में 3 ही मेंबर थे, और ये 3 मेंबर जो कैबिनेट मिशन के थे, उन्होंने हमारे बंधारण को, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, हमारे हिंदुस्तान के आईन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई। और उस असेंबली में 1946 में जितने भी 30,000 से ज़्यादा लोग जो फ्रीडम फाइटर थे, उनमें से 385 लोगों को मेंबर बनाया, अलग अलग मज़हब से, अलग अलग एजुकेशन से, मेल फीमेल से, और उसको बैलेंस करके इन 385 मेंबर्स ने करीबन 2 साल 11 महीने और 17 दिन, समझो 3 साल, तो 3 साल मेहनत मशक्क़त की। वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए कुल मिला के 166 बार मीटिंग की, और इन 166 बार की मीटिंग में उन्होंने जो भी उस टाइम के तजुर्बे थे और हमारे हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन थी उसको मद्देनजर रखते हुए 295 आर्टिकल बनाए थे, अपेंडिक्स बनाए थे। फिर उसमें और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के निगरानी में ऐसा लगा कि इसमें और हमको ज़्यादा मुसीबतें आने वाली हैं, और इसको वाज़ेह किया जाए और डिटेल बनाया जाए। तो फाइनली 26 नवंबर 1949 को 395 आर्टिकल और 9 अमेंडमेंट के साथ ये फाइनल किया गया, और उसको 26 जनवरी 1950 को अमल में लाया गया। तो इसी की याद में हम आज का दिन मनाते हैं। और हमने ये आइन बनाया तो उसमें 2 चीज़ें खास ध्यान में रखी थी। सर्वधर्म समदृष्टि, हर मजहब के लिए एक नज़र होनी चाहिए, और सर्वधर्म संभाव, हर मजहब के लिए एक ही नज़रिया होना चाहिए। तो ये हमारी खसूसियत थी। और जब हमने हमारा आइन बनाया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने 6 बुनियादी हक दिए, बुनियादी हुकूक 6 हैं हमारे। और आज की जो करंट सिचुएशन है जिसमें हम बहुत परेशान भी लगते हैं, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। हमारे को जो रास्ता दिखाता है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दिखाता है। हमको हमारे बुनियादी हुकूक से लड़ना है, उनको मुद्दा बना के, क्योंकि हमारे जो बुनियादी हुकूक है जो हमारे आइन ने हमको दिए हैं, दैट इज राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, जो आजकल हम बहुत घबरा रहे हैं या बहुत फिक्र में हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, इसके लिए हमको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मदद लेके हम भी
इस 1 अरब 40 करोड़ की सिटीजन की आबादी में हम भी बिल्कुल यकजा है, एक दूसरे के साथ इक्वल राइट्स में हैं, तो हम कभी भी उसमें डिस्क्रिमिनेशन को सोचकर हमारे हक को जाने नहीं देंगे। तो ये हमारे बच्चों को सिखाना भी है और इसी के साथ साथ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी है कुछ। आज एक ड्यूटी हम निभा रहे हैं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा आज़ादी का दिन है और जो हमारा यौम जमहूरियत है, ये मना रहे हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि हम हमारे बच्चों को एजुकेशन देंगे, दीन और दुनिया दोनों का देंगे, क्योंकि ये हमारे फराइज में आता है और हमारा हक भी है। तो हम इसी को मद्देनजर रखते हुए पहले, बिकॉज इफ अ नेशन हैज टू डेवलप, द सिटीजन हैज टू डेवलप, एंड सिटीजन हैज टू डेवलप, इंडिविजुअल हैव टू डेवलप। तो हमको हमारे इंडिविजुअल को डेवलप करते हुए हमारी फैमिली को डेवलप करेंगे, हमारी फैमिली को जो हमारे मजहब ने भी सिखाया है कि भाई क्लीनलीनेस, टाइमलीनेस, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम की अगर पाबंदी किसी मजहब ने सिखाई है तो इस्लाम ने सिखाई है। अब 7:20 पे सूरज तुलू होता है, तो आप 7:18 के बाद नमाज नहीं पढ़ेंगे और 7:22 या 30 के बाद ही पढ़ेंगे। इतनी मिनट की जिस मजहब ने हमको इम्पोर्टेंस सिखाई है, तो उसको हमारे देश की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना है। भाई हमने 75 साल के बाद स्लोगन लगा कि स्वच्छ भारत मिशन। हमारा तो मजहब सिखाता है कि आज़ादी, पाकी आधा ईमान है, और हमको यही चीज को हमारे हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हमारे समाज की तरक्की के लिए, हमारी फैमिली की तरक्की के लिए, हमारी महल्ले की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना है। ये नहीं कि हमारे दुराजी मेमन जमात के सवानी साहब सारे समाज को जमा करे कि भाई हमारा एरिया साफ करना है, एक मुहिम चलाए। ये मुहिम हमारे घर से शुरू होनी चाहिए, हमारे महल्ले में और हमारे शहर तक फैल जानी चाहिए। सबसे ज्यादा साफ सुथरे महल्ले हमारे होने चाहिए, जिससे कि हमारा सूरत नंबर 1 है वो और भी बरसों तक नंबर 1 बना रहे और हिंदुस्तान में हमारा नाम नंबर 1 पर हो। तो ये ही कुछ बुनियादी बातें थी जिसको हमारे बच्चों को सिखानी है, हमको सीखनी है, और यही बच्चे हमारा कल का फ्यूचर हैं। हम ज़ईफ़ी में इनके सहारे हमको आगे बढ़ना है और यही हमको रास्ता दिखाएंगे। तो अल्लाह पाक से भी दुआ है कि हमारे बच्चों के लिए हमको जो भी बेहतर काम करना है उसकी हमें तौफीक अता फरमाए। हम दिन रात हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए मेहनत करें और फाइनली इसका जो रिजल्ट होगा वो हमारे देश की तरक्की होगी। थैंक यू वेरी मच। आप सबका शुक्रिया, और रूमी ट्रस्ट ने और उनके जो भी कारकुनान हैं ऑफिस पेरिस से, उन्होंने हमको ये मौका दिया, तो उसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारी तरफ से एक एश्योरेंस देते हैं कि जब भी एजुकेशन के लिए, इल्म के लिए हमारी ज़रूरत होगी तो हम हमेशा साना बसाना जुड़ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, बहुत ही कम वक्त में सर ने बहुत बड़ी बड़ी बातें और बहुत सारी चीज़ों को कवर किया। एक मैसेज हम सभी को इस महफिल में सर ने जारी किया कि हिंदुस्तान के हर शहरी का ये फर्ज है कि उसे अपनी ड्यूटीज, अपने राइट्स, अपने हकूक, अपने फर्ज बखूबी
याद हो, उन्हें पता हो, तभी इस मुल्क की तरक्की में हम कंधे से कंधा मिलाकर शामिल हो सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सर ने सफाई के लिए भी बहुत तरगीब दी कि वैसे भी सफाई हमारा आधा ईमान है, और इंशाअल्लाह ताला हम सर की बातों को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अमल में लाएंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आगे की तरफ इस प्रोग्राम को बढ़ाते हैं। और नाउ आई रिक्वेस्ट आवर गेस्ट ऑफ ऑनर जनाब सोहेल भाई सवानी साहब to say few words on this auspicious moment. Sir, thank you so much, sir. अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। Respected Chief Guest Malik Saab, distinguished guests on dais, respected team Rumi and all of you, अस्सलाम वालेकुम। मलिक साहब ने आज ऐसी बातें बताई जो हमारी जानकारी में भी नहीं थी, और काफ़ी बातें हमारे लिए हमारी नॉलेज में अपडेशन भी बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होती है जब हम इस तरह का गैदरिंग मुसलमानों में देखते हैं, इस तरह की हमारी बस्तियों को माशाल्लाह खूबसूरत देखते हैं। और रूमी नर्सिंग स्कूल और आने वाले जो इनकी उम्मीद, जो इनकी एक ड्रीम है, वो अल्लाह ताला जल्द से जल्द और आसानी के साथ पूरा करे, और हम सब आपके साथ इंशाअल्लाह अज़ीम, और एक बेहतरीन मुआशरा बनाने की हम सब मिलकर कोशिश करते रहेंगे इंशाअल्लाह। आज के इस लम्हे को मैं अगर ग्रैब करूं तो मैं यहाँ पे काफ़ी पेरेंट्स हैं, मैं उनसे एक सबसे बड़ी फिक्र पे बात करना चाहता हूँ कि हम ये मानते हैं कि बच्चों को हमें 10वीं 12वीं कॉलेज तक पढ़ाना चाहिए, या उनको डिग्रीज करानी है, मास्टर्स कराना है, और उसके बाद एक रूटीन जिंदगी के अंदर में वो बच्चे जो है वो मिल जाएंगे और हमारी तरह एक सिटीजन बन के वो भी अपना कारवा आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इस दुनिया में आज के समय में हर 6 घंटे पे नॉलेज जो है, आपके मेरे पास जो नॉलेज है वो नॉलेज एक्सपायर्ड हो जाता है, और नया नॉलेज जो है वो हमें गेन करना जरूरी होता है। अब हुआ ये है, हम पीछे इसलिए हैं कि हम ये मान के चल रहे हैं कि 10वीं 12वीं तक पढ़ लिया और आज किसी भी एज पे हम हैं, लेकिन हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जबकि आप अलैहिस्सलाम ने कहा है कि अपनी जिंदगी के लास्ट ब्रीथ तक, छेली सांस तक आपको इल्म को हासिल करते रहना है। तो मेरी यहाँ पे ख्वातीन हजरात से भी और नौजवानों से भी और वडीलों से ये गुजारिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है एजुकेशन पे फोकस करें, हर दिन कुछ ना कुछ जानकारी लेने की हम कोशिश करते रहें। और दूसरी बात देखिए, स्किल है ना, हुनर है ना, तो हमारी आइडेंटिटी है। यानी आज आप किसी भी, चाहे हाउस मेकर, हाउस वाइफ है या आप सर्विस मैन है, लेकिन आप हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करें, ऑनलाइन कोर्सेज करें, सर्टिफिकेट कोर्सेज करें, और आप तालीम लेने की कोशिश करें। अगर आपके पास तालीम है तो उसे शेयर करें। देखिए, इससे अल्लाह भी खुश होता है। और जब हम खिदमत खल्क की बात करते हैं, जब हम सवाब जारिया की बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें दुनिया में भी काम आने वाली है और इंशाल्लाह आखिरत में भी काम आने वाली है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आज की इस दौर में, जद्दोजहद की दौर में, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया जाए। आज अगर आप 20 लाख 30 लाख की कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसके दाम बढ़ेगा, वो आपको भाड़ा भी देने वाला है, वो प्रॉपर्टी देगी। लेकिन जितने भी स्कॉलर्स हैं, जितने बड़े बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने ये कहा कि अगर यही 20-30 लाख रुपया अगर आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के पीछे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, देखिए वेस्ट नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एक अपने बच्चे को शेप दे रहे हैं। और एक बच्चा वो अब्दुल कलाम आजाद भी बन सकता है, डॉक्टर अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम भी बन सकता है,
हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं, एक अच्छा बिजनेसमैन भी बन सकते हैं, एक अच्छा इदारा चलाने वाला प्रेसिडेंट भी बन सकता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना अच्छी क्वालिटी एजुकेशन पे अपने बच्चों के पीछे खर्च करें। आप खुद भी उसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि बच्चा जो है वो यहाँ पे 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे रहेगा, लेकिन उसके बाद की जिम्मेदारी हम माँ बाप की है। हमें भी उनके पीछे तवज्जो देना है, वक्त निकालना है। और देखिए, एक बच्चे का जब जो फ्यूचर संवर जाता है ना, तो वो कुछ भी बन सकता है, कितना भी बड़ा काम कर सकता है, बड़े बड़ी इमारतों को बना सकता है, बहुत सारे लोगों को, हजारों लोगों को वो क्या कहते हैं कि नौकरियां दे सकता है और कंट्रीब्यूट कर सकता है हमारे नेशन के डेवलपमेंट में, रेवेन्यू में। तो मेरी यहाँ से आप सबसे इल्तिजा है कि हमें एज ए पेरेंट बहुत ज्यादा फिक्रमंद होना है और खास करके एजुकेशन में फोकस देना है, खुद भी पढ़ना है, बच्चों को भी पढ़ाना है। मुआशरे के अंदर में एक जो तरबियत, अखलाक, जो एक हम जो बात करते हैं, जो इस्लाम ने, आप अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया है, उस पर ज्यादा फोकस करते हुए एक ऐसा किरदार हमें फेंकना है कि जिससे इंशाअल्लाह अज़ीम जो हमारे सामने नफरतों की बात होती है या हमें इनसिक्योरिटी फील होती है, ये बिल्कुल बिल्कुल कहीं भी इसके लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जो जहन हमने बना लिया है, वो जहन की वजह से ये सारी चीजें आ रही है। तो बराए करम आप ज्यादा से ज्यादा सीखें और सिखाएं और मुआशरे को जो है वो एक तंदुरुस्त बनाएं, एजुकेटेड बनाएं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच सर, आपकी इस खूबसूरत दमदार अंदाज और बहुत ही दिल को छूने वाली बातें जो हमारे नफ्स को, हमारे किरदार को झंझोड़ देती है कि किस तरह से हमें तरक्की करनी है, किस तरह से हमें हमारे कौम को बेदार करना है एजुकेशन में, एजुकेशन फील्ड में। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि इल्म हासिल करना हम सब पर फर्ज है और इल्म हासिल करना हम सब पर फर्ज है, फिर चाहे हमें चीन ही क्यों न जाना पड़े। अब मैं दावत देने जा रहा हूं उस खूबसूरत दिल के हाकिम को जिसकी हिम्मत और हौसलों से यह ख्वाब हकीकत में बदला। एक पाक और साफ सोच को अमली जामा पहनाया गया और रूमी नर्सरी स्कूल ऑर्गेनाइज्ड बाय रोशनी एजुकेशन ट्रस्ट की बुनियाद रखी गई। इस इमारत में इन नन्हे नन्हे फूलों की नशोनुमा की गई और कौम के मुस्तकबिल को संवारने का एक खूबसूरत ख्वाब को हकीकत में बदलने की बुनियाद रखी गई। बहुत दिलकश, बहुत दिलदार है ये, बहुत दिलकश, बहुत दिलदार है ये, एक सुलझा हुआ किरदार है ये। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर वाइस प्रेसिडेंट सर जनाब तबरेज भाई वाड़ीवाला साहब to come on the stage and say few words today's occasion. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अनिस सर जब तारीफ कर रहे थे तो मन कर रहा था कि बार बार सुनता ही रहो, स्पीच छोड़ दे, बस उनकी तारीफ ही सुनता रहे। इतना अच्छा माहौल बना दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और कानों को बहुत अच्छा लगता है जब अनिस सर बोल रहे होते हैं। और दूसरा मैं हफीज़ भाई का भी शुक्रिया अदा करूंगा जो उन्होंने स्टेज का लोकेशन ऐसा सेट किया है कि हमारे गेस्ट को विटामिन डी सनलाइट के ज़रिए भी मिल रहा है। तो जो हमने उनको जो कुछ नवाजा है उसके साथ सनलाइट भी दिया है, तो हफीज़ भाई का इसके लिए खास शुक्रगुजार हूँ मैं। बात जो मुझे कहनी थी वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों गेस्ट बखूबी कह चुके हैं, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बस उन बातों को जोड़ते हुए मैं अपनी बात को कंप्लीट करूँगा। फिर आप इंशाल्लाह प्रोग्राम को देखेंगे, बच्चों को देखेंगे और टीचर की मेहनत को सराहेंगे इंशाल्लाह। एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुर्मुट में जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए। मैं सुहेल भाई की बात को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ
और एक हदीस पाक का मफ़हूम खास तवज्जो चाहूँगा। जिब्रील इस्लाम ने वहाँ बैठे एक सहाबी या एक शख्स के बारे में मौत की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी। हुजूर की चेहरे की रंगत को बात कर सहाबा इकराम ने दरियाफ्त किया तो हुजूर ने बताया कि फला शख्स जो इस जुर्मुट में बैठा हुआ है उसकी मौत का वक्त करीब है। तो ये बात उस शख्स तक भी पहुंची और वो शख्स खड़ा हुआ कि हुजूर, जब मेरी मौत का वक्त करीब है तो मेरे लिए क्या हुक्म है, यानी मुझे अभी क्या करना है जब मेरी मौत का वक्त करीब आ चुका है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या ही खूबसूरत इरशाद फरमाया, क्या ही खूबसूरत जवाब दिया। तवज्जो चाहूँगा कि आपको अभी इल्म हासिल करना है, यानी मौत का वक्त करीब है एंड मौत आनी है, मौत का वक्त करीब आ चुका है, फिर भी हुक्म क्या है, हमें इल्म हासिल करना है। माशाअल्लाह। तो इल्म की अहमियत को सोहेल भाई ने बताया और ये हदीस पाक मेरे जहन में फौरन आई तो मैंने सोचा आपकी नज़र करूं। बेशक इल्म की अहमियत ऐसी है कि आखिरी वक्त तक हमें इल्म हासिल करना है और जैसे सोहेल भाई ने बताया कि कोई उम्र नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम जो एज में भी है हमें इल्म हासिल करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 5वीं मरतबा कुरान पाक को सही कर रहा हूँ। अभी ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ, सुबह रोज पौना घंटा में ऑनलाइन कुरान पाक को दुरुस्त करता हूँ ताकि मैं अपनी नमाजों को सही कर सकूँ, अपनी इबादतों को सही कर सकूँ। तो ये जज्बा हमारे कौम के लीडर्स हमें देते हैं, हमें इसे लब्बैक कह के हमारी ज़िंदगी में पेवस करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अनीस सर ने मेरा एडमिशन बीए के लिए कराया है और अनकरीब मैं ग्रेजुएशन की तरफ भी जाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सर लोग मुझे दुआएं दें। तो ये दोनों सर लोगों की बात। और तीसरी बात भी मैं सर की हमारे ऑनरेबल चीफ गेस्ट की आगे बढ़ाऊं कि सफाई के लिए इन्होंने हमें पुकारा है कि हमारे मोहल्ले साफ हो। मैं आपकी नज़र करूं कि जब हमारे मोहल्ले को, हबीब साहब मोहल्ले को साफ करना हमने तय किया, मैं और मेरे एक दोस्त, फिर हमारी एक टीम बनी कि हम मोहल्ले को साफ करेंगे। संडे का दिन सुबह हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में गए, झाड़ू वगैरह लेकर आ गए और मोहल्ले में देखा तो सन्नाटा छाया हुआ कि हम दो ही है जिनके हाथों में झाड़ू है और मोहल्ले में सारे घर बंद है, क्या करना चाहिए। हमने हिम्मत बढ़ाई, हिम्मत दिखाई कि बस शुरू कर देते फिर देखते क्या होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जब हमने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया तो हर एक घर में से झाड़ू निकली, बंदे झाड़ू लेके निकले और पूरा मोहल्ला 2-3 घंटे के अंदर साफ हो गया। तो ये जज्बा किसी को तो दिखाना रहेगा भाई। इन लीडर्स ने हमें एक रास्ता दिखाया, अब हमें हर एक को एक लीडर यहाँ से देना है। हमारे बच्चे लीडर बने, हमारे समाज को मजबूत करें। इन नन्हे बच्चों के मुस्तकबिल को हम ऐसा बनाए। रूमी नर्सरी स्कूल, रोशनी एजुकेशन ट्रस्ट यही काम लेके आ गया है। आपकी दुआओं की जरूरत है। इंशाअल्लाह हम मजबूत मुस्तकबिल बनाएंगे अल्लाह की दुआओं से, अल्लाह के करम से और हमारे बुजुर्गों के, हमारे लीडर्स की दुआओं से हम इंशाअल्लाह मजबूत मुस्तकबिल बनाएंगे और हमारे देश की तरक्की में हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का और चीफ गेस्ट ऑनरेबल गेस्ट का भी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कोशिशों के साथ, अपनी दुआओं के साथ आज अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल को सजाने में हमारी मदद की और बड़े ही खूबसूरत लहजे में इन्होंने आज इस प्रोग्राम में जान डाली है। नाउ इट्स टाइम टू सेलिब्रेट आवर प्रोग्राम। It is a time to represent the cultural activity programs of our little charms. So मैं सभी मेहमानों खुसूसी से गुजारिश करूंगा कि वो अपनी डाइस के पास सोफे पर अपनी पोजीशन ले लें। Now we have some mesmerizing cultural performance lined up, showcasing the rich diversity of our nation. As we move forward in today's program, let's keep the energy high and your smile even higher. Any important work that doesn't begin with Bismillah is devoid of barakah and blessing. Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam said, any important work not begin with Bismillah remains imperfect and half done. Our next performance
reflect upon importance of Bismillah. Our little champs, please come on the stage. Address the perceived issues of mobile addiction. Our aim to remind us all about the importance of staying connected with the real world. Our performers, please take comes to the stage. मैं नहीं खाऊंगा अच्छा ये लो लेकिन बस खाना खा रहे हो। क्या आप सभी इस चीज से गुजर रहे हैं जिससे मैं गुजर रही हूँ यहाँ? चलो चलो बच्चों जल्दी चलो। हाँ मम्मी चलो चलते हैं।
तकलीफों का मजाक बनाने दे और अपनी तकलीफों का स्टेटस बनाने। मैंने तो अपने भाई को खो लिया, ये गलती आप मत करना, क्योंकि इंसान ने टेक्नोलॉजी को बनाया है, टेक्नोलॉजी ने इंसान को नहीं। Thumbs up for our brilliant students. Your talent makes today morning unforgettable. A round of applause for teacher Sana teacher. Your brilliance lights up the stage. माशाल्लाह, बहुत बहुत खूबसूरत प्रोग्राम, एक बहुत अच्छे मैसेज के साथ, बहुत सीरियस मैसेज के साथ अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे बच्चों ने इस पर परफॉर्म किया है। खूब सारे तालियों के साथ इन बच्चों के हौसलों को बुलंद किया जाना चाहिए कि इस एज में इतने खूबसूरत अंदाज से, इतने हौसलों के साथ इसे परफॉर्म करना, वाकई में जब हम एक एज के बाद भी स्टेज पर खड़े रहना हमारे पैरों में ऑसिलेशंस ले आता है, और इस एज में अल्हम्दुलिल्लाह इतने मजबूती के साथ डटे रहना वाकई में काबिल दाद है। तो खूब तालियों के साथ उन्हें, उनके हौसलों को बुलंद किया जाए, उन्हें खूब दुआओं से नवाजा जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। Coming right up is a short and sweet performance that packs a punch. Join us for a unique and informative discussion on our national flag. Students will delve into the symbolism, history and significance of tricolor. So please come on this stage. Tomorrow, find that by your TV. The national flag of India was embraced on 22nd July 1947. In the winter of his day, there is a subject line. Indian flag is three colors: saffron, white, Indian flag is welding. Let's learn flag on first favorite. Designed by Give a big clap if you just found something awesome. A big shout out to our talented students. Your passion and dedication have truly illuminated this celebration. Thank you for sharing your talent with us.
Modi President. Who is the Prime Minister of India? Narendra Modi is the Prime Minister. How many colors are there in national flag? There are 3 colors. Saffron, white and green. Which is our national animal? Tiger. Very good. Which is our national bird? Peacock. Which is our national flower? Which is national fruit? Mango. Which is our national tree? Banyan tree. Which is our national flower? Lotus. Very good. Which is our national game? Hockey. Very good. Which is our national vegetable? Pumpkin. Who is the national father of India? Mahatma Gandhi. Who wrote our national anthem? Rabindranath Tagore. New Delhi. What is the currency of India? Indian rupees INR. Thank you. Thank you for sharing your talent with us. A big shout out our talented students, your passion and dedication.
अरे इधर वीडियो बना रहा हूँ, जा हम लोग पानी का बोतल ले। हाँ चालू है। परफॉर्मेंस के लिए ढेर दुआएं हमें देते रहना है। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोग्राम। नहीं सह सकता 0 से नीचे और 50 से ऊपर का तापमान। 0 से नीचे चटक जाती है हड्डियां, 50 से ऊपर पिघल जाती है मांसपेशियां। तो फिर ये लोग कौन हैं जो सियाचिन के ग्लेशियर पर -2 की जरूरत करने के पार कर सके? ये लोग कौन हैं जो बारहर के रेगिस्तान में 52 डिग्री पर ठहाके मार के रख रहे हैं?
Very good. चालू है एंगल वीडियो फौजी हैं, लेकिन बारूद से नहीं बने। न हमारे सीनों में दिल की जगह डायनामाइट है, न आंखों में पानी की जगह आग। हमें कौन तुम्हारे जैसे हमें भी जब अपनों की याद सताती है, तो चैन की सांस नहीं लेने देती। हमारी धड़कनों में हिंदुस्तान है, लेकिन बरस में आज बरस है। किसी की फोटो सीने से लगा के सुनते हैं, किसी का दिया हुआ कागज पहन के खुश होते हैं, और घर से चिट्ठी आती है तो पापा क्यों नहीं, लेकिन जब कभी कोई गोली बाजू चीज जाती है तो माँ की धुन बहुत याद आती है। तो अगली बार जब अखबार में खबर पढ़ती है कि गलवान की घाटी में 30 फौजी शहीद हो गए, तो हमें गिनती समझ के भूल जाए, साथी समझ के याद आए। Mashallah, very good. Thank you students for being part of this celebration and for sharing your remarkable talent with us. A heartfelt thank you to Nazma teacher, your wisdom turned moments into memories. Very excellent performance, really indeed. No words to express what a lovely performance and really very hardworking and competitive performance. Congratulations to all the participants, teachers and parents. Really amazing performance, amazing. Join me in welcoming Sohail sir, a dedicated committee member whose commitment has made this event shine. Sir, the stage is yours. अस्सलाम वालेकुम। आने वाले तमाम मेहमान और बिलखुसूस हमारे रूबी नर्सरी स्कूल के बच्चों के तमाम पेरेंट्स का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकालकर रूबी नर्सरी स्कूल के इस प्रोग्राम को कामयाब किया, और मैं इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए हमारे रूबी नर्सरी स्कूल की जो टीचर्स का स्टाफ है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ, और उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी मेहनत ने इस प्रोग्राम को कामयाब किया। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि एक बार तालियां तमाम टीचरों के लिए। देखिए, हमारा ये इंस्टीट्यूट रूमी नर्सरी स्कूल बिलखुसूस एक पढ़ाई को लेकर चल रहा है, एजुकेशन को लेकर चल रहा है। तो हमारा पूरा मकसद होता है कि हमारे बच्चों को हम बेहतर से बेहतर एजुकेशन पढ़ाई दे सके, और उसके लिए हम पूरा डिपेंड होते हैं हमारे टीचर्स के स्टाफ के ऊपर। हमारा मैनेजिंग कमेटी
हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, ये सारा तो रहता है, मगर सारा जो एक्चुअल जो स्कूल का दिल होता है वो हमारे टीचर्स होते हैं। उन्हीं की कोशिशों का नतीजा होता है कि हमारा बच्चा कुछ पढ़ पाता है। तो आप लोग जब हमारे बच्चों को यहाँ पर भेजते हो, अपने बच्चों को यहाँ पर स्कूल में भेजते हो, तो उसके बाद सारी मेहनतें, जो 3 घंटे की मेहनत आपके बच्चों के पीछे इन्हीं टीचरों की रहती है। तो ये टीचर से जो है, ये रूमी नर्सरी स्कूल की पूरी जान है इनके लिए। और मैं बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, और हमारे मैनेजिंग कमेटी के लोगों को मैं ये मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने भी अच्छा परफॉर्म किया। और जो छोटे छोटे बच्चे, जो नन्हे मुन्ने बच्चे जिन्होंने ये परफॉर्मेंस के जरिए कामयाब किया इस प्रोग्राम को, उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। अगर किसी वजह से किसी बच्चों का परफॉर्मेंस थोड़ा सा कम रह गया हो, तो उनके पेरेंट्स दिल आज़ी ना करें, क्योंकि छोटी उम्र है, बच्चा स्टेज पर पहली मर्तबा आता है, कभी डर जाता है। तो कभी अगर उसके परफॉर्मेंस में कुछ कमी रह गई है, कुछ कोताही रह गई हो, तो उसको नजरअंदाज करें। बस ये सोचो कि स्टेज पर भी अगर बच्चे ने आके कुछ काम कर दिया है, कुछ परफॉर्मेंस कर लिया, यही काफी है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम बच्चों को, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करता हूँ कि यही बच्चे हमारा मुस्तकबिल बने, हमारे फ्यूचर के लीडर बने, हमारे फ्यूचर के रहनुमा बने, जो हमारी कौम की मदद करे, और कौम की मदद के जरिए समाज की मदद होगी, और समाज के जरिए एक अच्छे देश के मुस्तकबिल की मदद होगी इंशाअल्लाह। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।